कर इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोग निभाएं। Half of the Department of Youth Services and Sports, I extend a very warm welcome to Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, who has spared his valuable time to grace this occasion. I also extend a warm welcome to the officers of the department, to officers from SGFI and JNK administration, as well as coaches, teachers, and our young companions from across the country. It is a proud moment for all of us as we gather here this evening for the grand closing ceremony of the 69th National School Games 2025, hosted by the Department of Youth Services and Sports JNK in the disciplines of football, wushu, taekwondo, and table tennis. Today, we celebrate not merely the conclusion of a prestigious sporting event, but the rise of a confident, spirited, and determined young generation of India. Over the last 2 months, from 6th October to 24th November 2025, Jammu and Kashmir has witnessed a remarkable display of talent, discipline, and sportsmanship. Nearly 2,200 players and officials from 35 states, union territories, and organizations competed across venues, filling our fields and arenas with youthful energy and the promise of a bright sporting future. It gives me immense pleasure to share that the JNK athletes performed exceptionally well in these 4 sport disciplines, which JNK is hosting, securing 7 gold, 5 silver, and 6 bronze medals. JNK also emerged as the overall champion in Taekwondo under 19 boys and Wushu under 19 boys and girls, reflecting the growing strength of our sporting ecosystem. The department has made significant strides in recent years in the field of sports and other activities for youth engagement with the formulation of the first ever sports policy in 2022 after 7 decades. A robust 5-year developmental structure has been established which focuses on inclusivity, rural outreach, women empowerment, and high performance pathways. Under the visionary leadership of Honorable LG Sir, JNK has witnessed unprecedented transformation in sports infrastructure, supported both through UT resources and special interventions of the Government of India. We now have 20 modern indoor stadiums, 1 in every district, 2 water sports centers at Dal Lake and Ranjit Sagar Lake, 100 Khelo India centers, 51 floodlight stadiums, and a major expansion from 433 number of infrastructure works before 2019 up to 3,028 number of infrastructure works in 2025. Our focus on inclusivity has ensured that sports reach every panchayat, block, and district, enabling rural youth, tribal communities, girl students, and specially abled children to participate meaningfully. National campaigns such as Run for Unity, Fit India Run, Nasha Mukt Bharat, Har Ghar Tiranga, and Yoga Day have witnessed participation of nearly 12 lakh youth. नंदनी तमिलनाडु, आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। कृपया ये तालियां बिल्कुल भी रुकने ना पाए। ट्रॉफी और ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट रनर अप और सिल्वर मेडल के लिए नंदनी साहा, वेस्ट बंगाल। Gold medal and the winner Vanshika Mudgal, Delhi.
आप सबकी जोरदार तालियां। इसके बाद बॉयज सिंगल्स इवेंट टेबल टेनिस सेकंड रनर अप ब्रॉन्ज नमन भटनागर हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी और सिल्वर मेडल के लिए प्रियांश सिंह भाटी राजस्थान। विनर्स ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के लिए ऐशिक घोष वेस्ट बंगाल। Certificate of Commendation Under 19 Football Boys Team Jammu and Kashmir for bronze second runner up. I request Captain Sahil Manzoor और इशफाक कोच साहब कि कृपया मंच पर आए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन फुटबॉल की जितनी भी यहाँ पे प्रतियोगिता हुई उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि सेकंड रनर अप स्थान हासिल किया। तालियों की गूंज इससे ज्यादा जोरदार। सुरांश सिंह (65 kg JNK गोल्ड मेडल। मोहम्मद अरहम परे और उनके स्थान पर द्रोणा गौड़ी श्री कुलदीप हिंदू जी और अजय पाल गिल कोच साहब मंच पर आएंगे सभी जम्मू और कश्मीर गोल्ड मेडल के लिए। मोहम्मद हसीब सोहेल 80 kg जम्मू एंड कश्मीर गोल्ड मेडल। गर्ल्स अंडर 17 की कैटेगरी में जिया मनहास 48 kg जम्मू एंड कश्मीर गोल्ड मेडलिस्ट। ताइक्वांडो की टीम में से सर्वप्रथम शिवांश राजपूत जम्मू कश्मीर गोल्ड मेडल इन द कैटेगरी ऑफ 40। धन्यवाद महामहिम, आप सबकी जोरदार ताली। धन्यवाद। Youth Services and Sports, Director General Youth Services and Sports, जम्मू कश्मीर प्रशासन और यूथ सर्विसेज तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, सभागार में उपस्थित सभी कोच, मैनेजर्स, खिलाड़ी, आमंत्रित अतिथिगण, रेडियो सज्जनों और मित्रों, नेशनल स्कूल गेम्स के समापन समारोह में सभी युवा एथलीट्स के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तथा जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को तथा डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन से जुड़े सभी अधिकारी, विभिन्न राज्यों की टीम के मैनेजर्स, प्रशिक्षक ये विशेष रूप से धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के नेशनल स्कूल गेम्स में जम्मू कश्मीर में 4 डिसिप्लिन फुटबॉल, वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस का आयोजन किया गया था। मैं सभी विजेताओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ इस गेम्स में हिस्सा ले रहे 34 राज्यों और यूटीज के खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि नेशनल स्कूल गेम्स में देश के कोने कोने से जो एथलीट यहाँ उपस्थित हुए हैं वही देश के भाग्य विधाता है। उनका लक्ष्य
राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रमोट करने के साथ साथ भविष्य के स्वर्णिम भारत का निर्माण करना भी है। मुझे लगता है कि जब युवा ऊर्जा और नए लक्ष्यों का एक साथ मेल होता है तब समाज और राष्ट्र में एक नई गतिशीलता आती है और एथलीट अपनी रचनात्मकता, अपने स्किल्स और अपने पसीने से नई तकदीर की रेखाएं बनाने का काम करता है। इसलिए नेशनल स्कूल्स गेम्स युवा सपनों का प्रतीक है। यह जीवन में अनुशासन, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा के साथ साथ आगे बढ़ने के संकल्पों का भी प्रतीक है। यह गेम्स युवा डेमोग्राफी के एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। यह गेम्स राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा के आदर्शों का भी प्रतीक है। मैं समझता हूं कि इन गेम्स के द्वारा 4 अलग अलग डिसिप्लिन में सर्वप्रथम आने वाले और मेडल्स का ही केवल संघर्ष नहीं हुआ है, बल्कि इन चारों गेम्स में नई पीढ़ी के लिए भविष्य के नए लक्ष्य भी गढ़े गए हैं। और अब आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर और देश के नागरिक आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भारत के तिरंगे की शान बढ़ाते हुए देखना चाहेंगे। मित्रों, आज मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि बड़े सपने देखने की जरूरत है और उन सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की भी आवश्यकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह पूरे समर्पित भाव से खेल को अपना सब कुछ सौंपने का काम करता है। मैं चाहूंगा कि जब सब कुछ सौंपने की भावना मन में पैदा हो तब यह संकल्प भी हमारे मन में जन्म लेना चाहिए कि खेल के मैदान में पसीने की हर बूंद उस खेल में एक्सेलेंस प्राप्त करने के लिए होगी। माइंड और बॉडी दोनों के बीच यही संतुलन आपकी सोच को दृढ़ता प्रदान करता है और भविष्य में आपके परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। अगर प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक युवा एथलीट का समाज में बहुत ही विशेष स्थान होता है। अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रतीक एथलीट को समाज की नई पीढ़ी फॉलो करती है और वह उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने प्रदर्शन, अपने कर्म और खेल के मैदान के बाहर अपने व्यवहार और आदर्श से आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप यहाँ के नौजवानों के रोल मॉडल और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से रेडिकलाइजेशन में शामिल कुछ संगठन और व्यक्तियों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसके खिलाफ आपको निश्चित रूप से उठ खड़ा होने की आवश्यकता है। नौजवानों को प्रेरित करने की जरूरत है। एथलीट्स को कई बार इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी समाज के आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है और प्रगति को नई गति भी प्रदान करती है। एथलीट्स राष्ट्रीय एकता और सामूहिक गौरव का भाव पैदा करके देश के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए नौजवान साथियों, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि स्पोर्ट्स में बड़ी ताकत होती है और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा संदेश और उसका सबसे बड़ा उपहार सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ, हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिटनेस और फिजिकल रेजिलियंस नहीं है, बल्कि आपको जीवन के अलग अलग पड़ाव में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने का हौसला भी ये प्रदान करता है। स्पोर्ट्स की चुनौती सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये मानसिक भी होती है और इससे नौजवानों के जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का संबल और साहस मिलता है। खेल के मैदान में युवाओं को समान लक्ष्य वाले अन्य नौजवानों से जुड़ने का और उनसे मिल करके सामूहिक भागीदारी की भावना से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि राह में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती है और उन पर विजय पाना लक्ष्य तक पहुंचने की असली कुंजी मानी जाती है। स्पोर्ट्स उस विजय पथ का प्रदर्शन करता है। मैं आप सभी एथलीट्स को एक ऐसे पावरफुल डेमोग्राफिक फोर्स के रूप में देखता हूं जो इनोवेटिव है, आइडियलिस्टिक है
और अपनी रचनात्मकता द्वारा समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम है। खेल के मैदान से लेकर जमीनी स्तर पर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और स्पोर्ट्स के जरिए सामाजिक रूपांतरण के लिए आपको निरंतर भविष्य में भी प्रयत्न करना होगा। मुझे विश्वास है कि इस नेशनल स्कूल गेम से आप लोग मेडल्स के साथ साथ एक नए जम्मू कश्मीर की छवि और अनुभव भी वापस लेकर जा रहे होंगे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश के ग्रोथ इंजन में महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की क्षमता रखता है। एक ऐसे जम्मू कश्मीर जो आज शांति, सौहार्द और समृद्धि का प्रतीक है। मैं एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस सफल आयोजन के लिए जिन भी साथियों ने इसमें अपना योगदान दिया है, मैं उनकी भी सराहना करता हूं और उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से खिलाड़ियों को विशेष रूप से शुभकामना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर का फ्यूचर हर ही सेक्टर में बहुत ब्राइट है और गेम्स में क्योंकि फिलहाल हम गेम्स के सेक्टर को देख रहे हैं, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गेम्स में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी बेटर होती जा रही है। नेशनल स्कूल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी 6 अक्टूबर को की गई थी और करीबन ऑलमोस्ट 2 महीने तो नहीं बट हाँ डेढ़ महीने के करीब ये प्रक्रिया 1.5 महीने से ज़्यादा चली है और इसमें 4 डिसिप्लिन्स में वुशु, टेबल टेनिस, फुटबॉल एंड ताइक्वांडो में जो है टूर्नामेंट्स खेले गए हैं, मैचेस खेले गए हैं और JNK ने स्पेशली इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ताइक्वांडो अंडर 19 एंड वुशु गर्ल्स एंड बॉयज़ में हमने गोल्ड जीता है और चैंपियनशिप विनर्स हम रहे हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इन डिसिप्लिन्स में हर साल हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता जा रहा है। मैंने अपनी ओपनिंग एड्रेस में ये बताया भी था कि हमारी मेडल टैली पिछले गुज़िश्ता 5 सालों में बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ी है। नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स में भी और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में भी हमारी मेडल टैली कई गुना बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हमने बहुत कुछ स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया है जिससे बच्चों को खेलने की, प्रैक्टिस करने की बहुत फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने एनहांस करी हैं और उसी का ये नतीजा है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ तरक्की कर रहे हैं और इन फ्यूचर मुझे यकीन है कि अगर डिपार्टमेंट ऐसे ही एफर्ट्स स्पोर्ट्स सेक्टर में रखेगा, यूथ सर्विसेज में रखेगा, तो हम एक एग्जाम्पलरी यूटी के तौर पे उभरेंगे और फ्यूचर में भी हम ऐसे बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स होल्ड करते हैं। भविष्य में आप जम्मू कश्मीर को खेलों में कितनी आगे बढ़ते हुए देखते हैं? खेल में हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। देखिए बात क्या होती है, एक समय था जब एजुकेशनल जो लिटरेसी रेट के तौर पे JNK एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था और ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी नीचे उसकी रैंकिंग होती थी और फिर सर्व शिक्षा अभियान के जरिए जब एक्सेस बच्चों को स्कूल का मिला सबसे ज़्यादा और क्वालिटेटिव पढ़ाई जब मिली तो हमने लिटरेसी रेट में बहुत अच्छा किया। उसी दर्ज पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके का एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, कोचेस में हुआ है, जैसा हमने बच्चों को एक्सेस दिया है कि वो आए और अपने टैलेंट को होन करें, प्रैक्टिस करें, जैसा एक्सपोजर हम उनको दे रहे हैं और जैसा गवर्नमेंट की कोशिश है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, विंटर स्पोर्टिंग कैपिटल के तौर पे JNK एमर्ज हुआ है। इस बार हमने वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी डल में प्रोग्राम किया। ताइक्वांडो मैंने आपको बताया, अंडर 19 हम चैंपियनशिप ले गए हैं। तो इस तरीके के ये जो ट्रेंड है ये डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड है और प्रोग्रेस इज़ वेरी फास्ट। और पैरा स्पोर्ट्स में हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में जाकर के हमने इंटरनेशनल मतलब अरीना में अपनी छाप छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं इसके ज़रिए एक बहुत अच्छा टैलेंट फ्यूचर में उभरेगा और अच्छा टैलेंट उभरेगा एंड विल बी डूइंग वेरी वेल।